హోమియోపతి డాక్టర్. నేను బిఎంఎస్ అండ్ ఎండి పిహెచ్ హైదరాబాద్ జోహార్ మెడికల్ కాలేజ్లో హైదరాబాద్ చదివినాను. ఇక్కడ ఎలక్ట్రో హోమియోపతి క్యాన్సర్ అండ్ పెయిన్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్ పెట్టడానికి అనుకున్నాము. दिल्ली में डॉक्टर सिन्हा अनुसंधान केंद्रम హోమియోపతి వాళ్ళ తరపు వల్ల మేము ఇక్కడ పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాం. సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ విజిట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టాలని చెప్పి సార్ వాళ్ళు మాకు పర్మిషన్ జరిగింది. ఇది పెట్టాలని మాకు చాలా సంతోషం, దాంట్లో కూడా కొద్దిగా చేయాలని మాకు సంతోషం ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రో మెడిసిన్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ అనేది ఇప్పుడు రేడియేషన్ కానీ కీమో కానీ సర్జరీ కానీ ఏ విధంగా చేస్తారో వాళ్ళకి ఎంత సఫర్ అయ్యి బాగా ఇదైపోయి లాస్ట్ చనిపోవాలనుకున్న స్టేజ్కి వచ్చిన అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మా ఎలక్ట్రో హోమియోపతి క్యాన్సర్ పేరెంట్ సెంటర్ ఎలక్ట్రో మెడిసిన్ ద్వారా వాళ్ళకి ఉపశమనం తగ్గడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా చేయడం కోసం ఇక్కడ సెంటర్ పెట్టడం జరుగుతుంది. దానికోసం మాకు సార్ కూడా విజిట్ వచ్చేసి ఇది ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. నా పేరు నూర్ అహ్మద్. ఆక్యుపంచర్ డాక్టర్ తర్వాత బిఎంఎస్ కూడా చేశాను నేను జోహర్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి. సార్ ఢిల్లీ ద్వారా మాకు పరిచయం అయ్యారు. సిన్హా గారు ఎలక్ట్రో హోమియోపతిలో క్యాన్సర్ ద్వారా ఎంతోమంది సర్జరీ చేయించుకోవడం, రేడియేషన్, కీమోథెరపీ ద్వారా ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురై ఎన్నో సమస్యలతో ఎంతో టెన్షన్ పడుతూ వైద్యం చేయించుకుంటుంటారు. నొప్పిని భరించలేకపోతారు. కానీ అటువంటి వారికి స్వస్థత ఇవ్వడానికి ఇక్కడ సిన్హా పెయిన్ అండ్ థెరపీ సెంటర్ ద్వారా ఎలక్ట్రో హోమియోపతి మెడిసిన్ ఇస్తున్నారు. ఆ మెడిసిన్ ద్వారా మంచిగా క్యూర్ చేస్తున్నారు. పెయిన్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ జరగడం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నన్ని రోజులు ఆ పెయిన్ లేకుండా ఆనందంగా జీవితం గడపడానికి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా గుర్తింపబడిన కేంద్రం అండి. ఎన్నో బ్రాంచులు డాక్టర్ సిన్హా గారు, ప్రొఫెసర్ సిన్హా గారు ఢిల్లీ ద్వారా మాకు సహకరిస్తున్నారు. వీళ్ళ సహకారంతోనే ఇక్కడ బ్రాంచ్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి సెంటర్ హాస్పిటల్స్ లేవు. ఇక్కడ ఒక సేవ చేసుకునే భాగ్యం మాకు దేవుడు కల్పించారు. కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రో హోమియోపతి యొక్క వైద్యాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరుచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. मैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले तो मैं इस प्लेस को बेतम चरला को थैंक्स करना चाहूँगा, जहाँ पर कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, जो उम्मीद नहीं थी मुझे। जब सबसे पहले मेरे पास रिक्वेस्ट लेटर आया था यहाँ पर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के लिए, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक्चुअली मुझे जाना था कहीं और मैं आया हूँ यहाँ अपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को पोस्टपोन करके। आप लोग को पता ही होगा कि 24 को गुड़गांव में भी पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है। जस्ट अभी 10 दिन बाद एक और भी पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का इनॉग्रेशन होगा। कानपुर से हमारी एक नई टीम आई थी ट्रेनिंग के लिए, वो अभी दिल्ली में वेट कर रही है। उसकी 1 दिन 2 दिन की क्लासेस हुई और उसके बाद अभी तक वेट कर रही है कि मैं कब लौटूं आंध्रा से, तो फिर मैं कंटिन्यू करूं। मुझे चंडीगढ़ भी निकलना था, बहुत जगह की ट्रिप थी, लेकिन सब जगह को कैंसिल करके मैं इस बेतम चरला में अभी बैठा हुआ हूं। और सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर जैना गौड़ा को भी थैंक्स करना चाहूँगा, और मेरी साजदा बहन सबसे मैं क्लोज इसलिए हो पाया कि ये इन्हें हिंदी पता है, ये मेरी ट्रांसलेटर भी है यहाँ के, क्योंकि लोग जब बोलते हैं तेलुगु में तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। बोल तो बहुत अच्छी बातें रहे हैं, मगर मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो वो अच्छी बातें मेरी किसी काम की नहीं हो पाती है। तो वो मुझे हिंदी करके हर बात को समझाती हैं कि क्या होता है। और मेरे राइट हैंड जो बैठे हैं नूर अहमद साहब है, डॉक्टर नूर अहमद साहब, ये आज मुझे पता चला कि ये डुअल कैरेक्टर के हैं, कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं। तो मुझे अपने आप पे भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इतने बड़े आर्किटेक्ट के पास बैठा हूँ। आज मैंने इनका आर्किटेक्चर भी देखा है, इनकी कला देखी है। जब वो कला मैंने देखा तो मैं बिल्कुल समझ गया, क्योंकि साइंस की स्टडी मुझे भी है कि क्योंकि किसी व्यक्ति में
बिल्कुल एक जनरेशन में तो ये बातें आ ही नहीं सकती है। फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बोले कि मेरे ग्रैंडफादर एक आर्किटेक्ट थे, शिल्पकार थे, और तो बस मैं समझ गया कि ये बस जिन्स का खेल है। वो जिन्स में ये बातें आई हैं और ये न भी सीखते तो भी सीख जाते। जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मैं अगर न भी पढ़ूं तो भी मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखूंगा, क्योंकि मेरा बर्थ ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हुआ है। मैं तो बचपन से ही एसोन और एस्टेन देख रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि साइंस से स्टडी तो करनी है हमें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बिना मांगे मिल जाता है बिल्कुल। तो ये ऊपर वाले की देन होती है, गॉड गिफ्टेड हम इसी को कहते हैं। हमारा बर्थ भी अगर वैसी जगह पे अगर हो जाए तो इसको भी हम गॉड गिफ्टेड कहें कि ऊपर वाले का बहुत बहुत थैंक्स कि मैं ऐसे घर में जन्म लिया हूँ, ऐसे घर में भेज दिया गया मुझे, जहां से कि मुझे बिन मांगे सब कुछ मिल गया है। मेरी स्टडी और भी डिफरेंट फील्ड में हुई है। मैं तो एक्चुअली एलोपैथिक एमबीबीएस करने के लिए मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मैंने कंपटीशन दिया भी है। उसके बावजूद भी मैं सब कुछ छोड़कर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हमने एडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र आज 50 इयर्स के एक्सपीरियंस पर रन कर रही है। हमारे फादर डॉक्टर केपी सिन्हा हमारे टीम लीडर हैं, और मैं सबसे पहले उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीजें दी है, वो चाहे वेतम चरला की मीटिंग हो या 13 फरवरी की 25 आईएसओ के बीच की मीटिंग हो, उस हर मीटिंग को हमने जिससे कॉन्फिडेंस के साथ फेस किया है, वो कॉन्फिडेंस भी हमारे फादर डॉक्टर केपी सिन्हा की देन है। वो हमारी जीन्स में डाला गया है उस कॉन्फिडेंस को। तो मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ, और सबसे बड़ी खुशी हुई कि मैं वो कॉन्फिडेंस यहां भी देख रहा हूं इस जगह पे। शुरू में मुझे लगा, जब मैं हैदराबाद उतरा तो पता चला कि यहां से, मैं हैदराबाद उतरने के बाद से मुझे खुशी शुरू हो गई वहां की वेलकम देखकर, क्योंकि जमीन तो हैदराबाद की थी, लेकिन वो गुलदस्ते से जो खुशबू आ रही थी वो आंध्रा की थी, उसे देने वाले लोग आंध्रा के थे। तो वहां पर मैंने देखा, वहां से मैं, लोग बोले कैसे 250 किलोमीटर चलने हैं। फिर मैंने कहा 250 किलोमीटर मतलब कि हैदराबाद से मुझे दूर जाना है। फिर कि चलो जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो अनएक्सपेक्टेड सब कुछ उम्मीद से परे मिल रहा है मुझे। यहाँ के खाने, मतलब लग ही नहीं रहा कि हर चीज रियलिटी। आज मुझे निकलना है यहाँ से, रात में, मैं सुबह की मेरी फ्लाइट है हैदराबाद से, तो आज नाइट में ही मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर हार्डली कोई पूछा जाए ऊपर वाले से, तो मुझे यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है। लग रहा है कि मैं 10 दिन 15 दिन अगर मैं रुक भी जाऊं यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा, सारा दिन हॉस्पिटल में बैठे बैठे बीत जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगता है। वो तो टाइम होती है इसलिए खाना खा लेते हैं कि चलो टाइम हो गया खाना खाने का, कुछ ले लेते हैं, लंच ले लेते हैं, डिनर ले लेते हैं, लेकिन भूख नहीं लगती है। कहते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति अगर पॉजिटिव ऑरा के बैठे होते हैं, हमें फूड से मिलती क्या है, एनर्जी ही तो मिलती है। लेकिन जब हमारे सामने जब पॉजिटिव ऑरा के लोग बैठे होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेके, तो वहां से भी वही एनर्जी हमें निकलती है, और जब हमें मिलती है तो फिर भूख लगने की तो सवाल ही नहीं होती है, उससे ही हम फुलफिल कर लेते हैं। तो ठीक उम्मीद है कि अगले महीने में ही, अभी डेट का फिक्सेशन नहीं किया गया है, लेकिन अगले महीने में उम्मीद है कि पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का इनॉग्रेशन यहाँ बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। और मैं पूरे इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश का ये पहला पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर इंडिया के मैप में एक अलग स्थान लाएगा। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे सेंटर हैं। इंदौर में हमारा 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल रन कर रहा है, डॉक्टर अजय हडिया उसके डायरेक्टर हैं। इसकी स्टार्टिंग जो हुई पटना से हुई, बिहार की धरती पटना से, क्योंकि मैं खुद भी बेसिकली पटना का रहने वाला हूँ। उसके बाद बॉम्बे में इसका कांडीवली में इनॉग्रेशन हुआ, डॉक्टर सुरेश जायसवाल के यहाँ हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। उसके बाद इंदौर में हुआ, इंदौर के बाद हौज खास में, सॉरी इंदौर से पहले हौज खास में हुआ नई दिल्ली में, जिसका इनॉग्रेशन खुद यहाँ के सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने अपने हाथों से किया। ये अपने आप में फक्र करने वाली बात है कि पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का इनॉग्रेशन, क्योंकि उन्होंने ही परमिशन भी दिया और उसके बाद उन्होंने उद्घाटन किया। और एक एक सेंटर की न्यूज जब जाती है हमारे मंत्रालय में, तो उन्हें लगता है कि न जाने कितनी खुशी होती है। शायद उतनी खुशी मुझे नहीं होती है। मुझे लगता है कि अभी तो 6 सेंटर खुले, 5 खुले हैं, अभी तो हमें 108 सेंटर खोलने हैं पूरे इंडिया में।
लेकिन जैसे जैसे स्टेप एक एक बढ़ते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को उतनी ही कई गुना ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद अभी गुड़गांव में सेंटर खुला 24 को, और देन कमिंग जो ओपन होने जा रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस आंध्रा को लेके कि यहाँ जरूर कुछ अलग होने वाला है। और यहाँ जो कहा जाता है ना कि तीन लोगों की हमारे पूरी यूनिवर्स जो है ना, कहा जाता है कि 3 पावर से रन कर रहा है। हमारे शरीर में भी माइंड, बॉडी एंड सोल 3 ही होते हैं, तो इस हॉस्पिटल में भी 3 ही हैं। हमारे डॉक्टर जैना गौड़ा एंड डॉक्टर नूर अहमद साहब हमारे एंड साजिदा बहन, तो ये 3 की जो कहा जाता है ना कि ये तिकड़ी, ये पता नहीं क्या गुल खिलाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं इसी के साथ सबको थैंक्स भी करना चाहूँगा, आप सबको भी थैंक्स। धन्यवाद।